اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کے میدان پر تلواروں کی کھنکار کے بیچ جب کفار مکہ چٹان بن کر کھڑے ہو گئے، ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی، تلوار اٹھائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اتر آئی۔ یہ وہ پہلی واریر وومن آف اسلام تھیں، حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ کے قبیلے خجرج سے تھا اور وہ بنو نجار کی ساکھ سے تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین مدینہ میں اسلام کی دعوت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی میں 2 بار شادی ہوئی، ایک شادی اسلام سویکار کرنے سے پہلے اور دوسری شادی اسلام میں آنے کے بعد۔ ان کے پہلے شوہر کا نام زید بن عاصم تھا، دوسرے شوہر کا نام غازیہ بن عمرو۔ پہلے شوہر سے ان کے 2 بیٹے حبیب اور عبداللہ، دوسرے شوہر سے ایک بیٹا تمام اور ایک بیٹی حولہ تھی۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا تعارف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا اور بے بیعت عقبہ یعنی دوسری بیعت کہ وہ بہادر لیڈی تھیں جو تقریباً 70 مرد اور کچھ عورتوں میں شامل تھیں۔ ایک روایت کے مطابق وہاں 3 عورتیں تھیں، پر روز مرہ کے روایتوں میں پروشوں کی بیعت کا ہونا کافی مانا جاتا تھا، لیکن حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خود ہی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیعت کے لیے قدم بڑھایا۔ یہ ان کی ہمت اور عقیدت کی ایک تصویر تھی۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، تو یہ بیعت زبانی، موقف اور بربل روپ سے لی گئی۔ پھر حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ لوٹ کر لوگوں کو اسلام کا پیغام سنانے لگی۔ سال 625 بدر کے بعد کی ناکامی کے بعد کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر مسلمان سے جنگ کرنے کے لیے احد کے مقام پر آ پہنچے۔ مسلمانوں کی سنکھیا لگ بھگ 1000 تھی، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عبداللہ ابن ابی اور قریب 300 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ایک بھاری دھکا تھا۔ پھر بھی جب تلواریں کھینچیں اور دشمن آگے بڑھے، حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ وہ نہ کیول لڑیں بلکہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار، اپنے بچوں کو بھی جوخم میں ڈال کر کھڑی رہیں۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں، یہ ایمان، ہمت اور اقدار کی کہانی ہے۔ ایک عورت سماج کی سیماؤں کے باوجود جب رب کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے تو دنیا کی سازشیں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اتہاس میں اسی شان کے ساتھ درج ہے، ایک ایسی شخصیت جس نے دکھا دیا کہ سچی حفاظت اور سچا جہاد صرف تلوار سے نہیں بلکہ روحانی ہمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے سے ہوتا ہے۔ جنگ احد کا میدان، تلواروں کی کھنکھناہٹ، تیروں کی سنسناہٹ، اور اسی میدان میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہیں اسلام کی کئی بہادر عورتیں۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب خواتین اس وقت میدان جنگ میں تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے، پانی پلانے اور میڈیکل مدد پہنچانے کے لیے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر غازیہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں بیٹے حبیب بن زید اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 صحابہ کو احد کے پہاڑ پر تعینات کر دیا اور سخت حکم فرمایا، اگر دیکھو کہ مسلمان جیت گئے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا، اور اگر دیکھو کہ مسلمان ہار گئے ہیں، ان کے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک کہ میں خود نہ کہوں۔ لیکن اب تو جنگ کے دوران جب مسلمانوں نے دشمنوں کو بھاگتے دیکھا تو پہاڑ پر موجود کچھ تیر انداز مال غنیمت اکٹھا کرنے کی غرض سے نیچے اتر آئے۔ یہی موقع تھا جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ اچانک پلٹ گیا، مسلمان شہید ہونے لگے۔
हालात बिगड़ गए और फिर कुफ्फार मक्का सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। इसी लम्हे हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि दुश्मन सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के पीछे हैं, तो उन्होंने मरहम पट्टी का सामान छोड़ दिया, एक तलवार उठाई, गिरह पहनी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुश्मन के बीच ढाल बनकर खड़ी हो गईं। वह जहाँ से दुश्मन आता वहाँ दीवार बन जाती, जहाँ से हमला होता वहाँ चट्टान बन जाती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जब मैं दाहिनी तरफ देखता नुसैबा नजर आती, जब मैं बाईं तरफ देखता नुसैबा नजर आती। हर तरफ मैं नुसैबा को अपनी जान की हिफाजत के लिए लड़ते हुए देखता। ये गवाही सिर्फ एक तारीफ नहीं, ये एक औरत की ईमानी गैरत और जज्बे की शहादत है। हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान करती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर रहा था। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सिर्फ मेरे शौहर, मेरे दोनों बेटे और कुछ गिने चुने लोग ही मौजूद थे। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी शक्ल व सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, दुश्मन का ध्यान हटाने के लिए उन्हें अपनी तरफ ले गए, लेकिन अब्दुल्लाह बिन कमिया ने उन पर वार करके उन्हें शहीद कर दिया। कुफ्फार मक्का में ये शोर मच गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माद अल्लाह को कत्ल कर दिया गया है। मैदान जंग में अफरा तफरी फैल गई। किसी ने कहा नहीं, वो जिंदा हैं और लड़ रहे हैं। इसी उथल पुथल में हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 13 जख्म लगे। उसने एक बार उनके कंधे पर इतना गहरा था कि उसे भरने में पूरा 1 साल लग गया, लेकिन तमाम जख्मों के बावजूद वह आखिर तक लड़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करती रहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जंगी काबिलियत को सराहते हुए फरमाया, वह फला से बेहतर थी, वह फला से बेहतर थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पूरे ख़ानदान की तारीफ़ करते हुए फरमाया, क्या ही शानदार ख़ानदान है। हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दुआ फरमाइए कि हम जन्नत में भी आपके साथी हों। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, नुसैबा और उनके घर वालों को जन्नत में मेरा रफ़ीक बना। यह दुआ सुनकर हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब जो कुछ भी हो ज़िंदगी में आना, जो भी मुश्किलात, जो भी आजमाइशें, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। यह है हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम की पहली बारियत वूमेन, एक औरत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपने खून का कतरा बहाने को तैयार थीं। जंग ओहद की शमशीरें चमक रही थीं, मैदान जंग गरज रहा था। उसी शोरगुल के बीच एक औरत, एक ईमान से लबरेज औरत तलवार उठाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खड़ी होती है और कुफ्फार मक्का के सामने चट्टान बन जाती है। वो थी पहली मुजाहिदा, पहली योद्धा खातून इस्लाम, हज़रत नुसैबा बिन्त काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न सिर्फ बहादुर थीं, बल्कि बेहद यकीन वाली, कॉन्फिडेंट और जावाज़ थीं। एक दफ़ा उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में अक्सर मर्दों का जिक्र आता है और औरतों का इतना जिक्र क्यों नहीं आता। फिर कुछ अरसा गुजरा और अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की वो आयत नाजिल फरमाई जिसके माने मोमिन औरतें। इस आयत ने साबित कर दिया कि इस्लाम में मर्द और औरत दोनों का दर्जा अल्लाह के नज़दीक उनके ईमान और आमाल से तय होता है, ना कि उनके जेंडर से। हदीस की रिवायतों में हमें हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी की झलक मिलती है। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने फ़ौरन खाना पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी खाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा रोज़ा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोज़ेदार के पास लोग खाते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं जब तक वो लोग खाना खाते रहते हैं। क्या अजीम मकाम है। उनका ईमान इतना मजबूत था कि जब इस्लाम की हिफाजत की बात आती थी तो वो अपनी जान, अपने बच्चे, अपना माल सब कुर्बान करने को तैयार रहती थी। मुसैलमा कज्जाब, वो झूठा जिसने नबूवत का दावा किया, जब उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजकर नबूवत बांटने की बात की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में 2 सफ़ीर भेजे। इनमें से एक सफ़ीर थे हज़रत नुसैबा
रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हबीब इब्न जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनका खत पढ़कर सुनाया तो मुसैलमा ने उनसे पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं गवाही देता हूँ। फिर उसने पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ठंडे लफ्जों में कहा, मैंने तो ये कभी नहीं सुना। 3 बार यही सवाल और 3 बार वही जवाब। फिर उस कज्जाब ने हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो को जिंदा पकड़ लिया और बांध दिया और एक एक करके उनके जिस्म के टुकड़े करता और हर जिस्म के टुकड़े के साथ पूछता कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? और हर बार एक ही जवाब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये खबर जब हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई, सोचिए एक माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन उनका जवाब सुनकर आसमान भी गवाह बना। उन्होंने कहा, मैंने तो उसे इसी लम्हे के लिए तैयार किया था और दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी देना कि मैं इस कज्जाब की मौत अपनी आँखों से देख लूँ। और फिर वही हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब मुसैलमा का फितना बढ़ा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। इस जंग में हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी उतरी और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न जैद को भी साथ ले गईं। यमामा के मैदान में आखिरकार बहसी जो बाद में मुसलमान हो चुके थे ने मुसैलमा कज्जाब को नेजा मारकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आँखों से अपने बेटे के कातिल और इस्लाम के दुश्मन का अंजाम देखा। जंग उहद के बाद उन्होंने हुदैबिया, हुनैन और यमामा जैसी जंगों में भी हिस्सा लिया। उनकी पूरी ज़िंदगी जिहाद, कुर्बानी और ईमान का तर्जुमा थी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक जिंदा रहीं। आखिरकार उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये थी उस अजीम औरत हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दास्तान। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये बताई हुई दास्तान और इस्लाम की इस अजीम औरत की दास्तान सुनकर कोई जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो से जानकारी हासिल हुई है, हमें सपोर्ट करें और हमारी इस वीडियो को अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने दीन, अपने इस्लाम की जानकारी हो। क्योंकि अगर हम अपने दीन, अपने इस्लाम को जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज़ दोस्त।